देता हूं, इस प्रकार हम सभी लोगों को प्रभु ने एक समय दिया है परमेश्वर का वचन को सीखने के लिए। I know it is a busy day for many of you because of the VBS activities and all. और मैं जानता हूं कि आप सभी लोगों को कुछ भाई लोगों को ये एक बिजी दिन हो सकता है क्योंकि आप लोग बीबीएस में व्यस्त है। So we will be going very quickly, and I will try to finish it a little early today. और आज मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा जल्दी खत्म करने के लिए। Maybe next class you can continue the next class also if Lord willing. Last few weeks we were going through the life of the man of God Job. और परमेश्वर का जो व्यक्ति अय्यूब का जीवन का बारे में पिछले कई हफ्ता से हम लोग सीख के आ रहे हैं। I hope I can finish this character study of this character by this week. और इस सप्ताह मैं कोशिश करूंगा कि अय्यूब का जीवनी इस सप्ताह हम खत्म करेंगे। When we go through the 42 chapters of the book of Job, it is really exciting and encouraging for all of us. और जब हम लोग 42 अध्याय तक हम अगर जाते हैं, हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन और एक आनंद का अध्याय हमको लगता है। Many times when we are reading the Bible chapter by chapter each day, we will not get connection between the first chapter and the last chapter in a straight line. और एक सीधा जो लाइन जैसा हम लोग खींचते हैं, इस प्रकार अगर हम लोग एक अध्याय से लेकर 42 अध्याय अगर प्रतिदिन हम लोग बाइबल स्टडी करके आते हैं, वो सही हमको सही जो लाइन कभी कभी हमको छूट जाता है। But if you are trying to read the book as a whole in one sitting, you will get a clear picture of this book. आप अगर परमेश्वर का इस वचन को एक सिटिंग में अगर पूरा अध्याय का पढ़ेंगे, पूरा अय्यूब का सारे 42 अध्याय अगर पढ़ेंगे, आपको पूरा चित्र आपको मिल जाएगा। Before I take this Bible study, previously I was trying to read this book as a whole. In order to do it, I was listening to an audio Bible while I was driving. So from the first chapter to 42 chapter in a long drive, I completed the reading in a one sitting. और हमारा फिलिप साहब जब एक ही सिटिंग में जब बाइबल का जो ऑडियो बाइबल वो ड्राइविंग कर रहे थे, तो एक सिटिंग में पूरा बाइबल को उन्होंने सुना। So even before I used to read this book several times, but this time I got a real and a clear, a better picture because of the one sitting reading of this whole book. और एक सिटिंग का जो बाइबल सुनने व अध्ययन करने के द्वारा मुझे अय्यूब का पुस्तक का पूरा चित्रण मिल गया। So I recommend you to listen to the Bible. Sometimes you may be walking through the road with a earplug. You can listen from the Bible, or when you are working at kitchen, you can play the audio Bible and listen to the Bible and cook food. Or you are working in a farm and you can listen to the Bible and do it, and it will give us more insight in the Bible. और मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप काम करते हैं घर पे, चाहे किचन में हो, आप चलने में जाते हो, कोई जॉगिंग फॉगिंग करते हो, आप कान में भी बाइबल का एक पिन लगा करके जो आवाज को सुनिएगा, आपको पूरा अगर सुनेंगे आपको पूरा चित्रण मिल जाएगा उस पुस्तक का। When we were going through through the life of Job, we have seen a negative kind of situation he was facing in his life. और जब हम लोग अय्यूब का जीवन के द्वारा हम जब जा रहे थे, जो उन्होंने बहुत प्रकार का जो नकारात्मक बातें उनका जीवन में उन्होंने बहुत सामना किया। And he was suffering in his heart, in his body, and even spiritually also he was not satisfied within these 41 chapters.
और अगर हम लोग 41 अध्याय में जब आते हैं, तो ये 41 अध्याय में वो उसका जीवन में कई बार वो मतलब वो सैटिस्फाइड है, उनका तृप्त नहीं था। We know in the first chapter, in the beginning verse, he was satisfied, but throughout this book, until chapter 42, the situation was a kind of negative. एक अध्याय और 42 अध्याय, ये दो अध्याय ही वो वहां पे देखते हैं कि आयुब एक तृप्ति व्यक्ति देखते हैं। बाद में वो केवल उसका नकारात्मक 40 अध्याय, मतलब दो दो अध्याय से लेके 41 अध्याय तक उसका खिलाफ ही था बातें सब। Job did not understand that this whole scene of trials was programmed and planned in the heavenly council. और आयुब जब उसका जीवन में वो उसका समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर, स्वर्ग का जो उसका जो योजना के अनुसार उन्होंने उसका जीवन में सब कुछ उन्होंने ऐसा योजना बना के रखा था। If he knew that it was from the plan of God, he would never say such kind of painful words in between. और अगर ये सारे ये परमेश्वर का और से ये योजना है, बल्कि अगर आयुब को मालूम होता, प्यारो, जो बीच में जो शब्द वगैरह आयुब ने इस्तेमाल किया वो कभी नहीं कहता। It is a lesson for all of us that we also are facing trials and painful situations in our life, but we actually many a times don't think that it is orchestrated by God. So we are suffering and we are doubting about God's love. और जब हमारा जीवन में भी जब इस प्रकार का दुख तकलीफ अगर आता है, हम लोग ये डाउट ना करें कि ये परमेश्वर का और से ये दुख तकलीफ आया है, क्यों ऐसा परमेश्वर कर रहा है। डाउट हमारा जीवन में कभी नहीं आना चाहिए। Jesus Christ has told us that even a sparrow is falling down with the knowledge and permission of God. अगर एक चिड़िया अगर गिर भी जाता है, ये परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर का अनुमति से ही वो गिर जाता है। And he said, if a sparrow is considered by God, how much more you children of God? और अगर एक छोटा सा चिड़िया जो घोंसला से अगर वो गिर जाता है, अगर परमेश्वर उसका भी इतना ख्याल रखते हैं, तो परमेश्वर का दृष्टि में आप और हम कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं होंगे। Now we are coming to the climax of the story of Job. और आयुब का जो आखिरी में जो किस प्रकार से परमेश्वर उसको ऊपर में उठाते हैं, वो हम लोग देखने के जा रहे हैं। We know that all his friends doubted his integrity because of all these kind of sufferings one by one happen in his life. और आयुब का जीवन में जो दुख तकलीफ से वो गुजर रहा था, और उनका जो मित्रगण आयुब का जो विश्वास योग्यता के ऊपर उन्होंने प्रश्न उठाया। Even his own wife was not able to adjust with this kind of situation. और इस प्रकार का परिस्थिति उनका स्वयं का जो बीबी आयुब का बीबी भी वो समझ नहीं पाई और एडजस्ट नहीं कर पाई। We may criticize Job's wife because of her statements. और आप और मैं हो सकता है आयुब का पत्नी जैसा जिस प्रकार से वो जो शब्द कही, आप और हम उसका विरुद्ध में बात कर सकते हैं। Many a times people are picturizing this lady as a negative character. और बहुत बार ये स्त्री को एक नेगेटिव नकारात्मक स्त्री बोल के जो प्रचार में भी हम लोग सुनते आ रहे हैं। See, this lady, this wife of Job, was a simple woman who lost all her 10 children. और ये अगर आप लोग देखेंगे, ये आयुब का बीबी भी एक साधारण सी स्त्री थी। अभी देखिएगा 10 बच्चे वो खो चुकी है। What a painful heart she had those days. और उस समय में वो कितना जो दुख भरी हृदय से वो गुजरी नहीं होगी। All wealth Job had,
it was hers also, and everything she had lost in one day. और आयुब का पास जितना धन संपत्ति था वो आयुब का पत्नी का भी है, लेकिन और एक अच्छा दिन में ये सब कुछ खो गया। She was not able to bear all those things. और आयुब का बीवी ये सब कुछ वो सहन नहीं कर पा रही थी। And in the second trial, her husband is having a severe disease in his body. और दूसरा भाग में हम लोग देखते हैं कि आयुब का बीवी का जो पति है आयुब, उसको पूरा शरीर में घा भरा हुआ शरीर था। So she was not able to bear. Now the second time this is happening, she was not able to adjust with. और पहली भाग में उनका धन संपत्ति और बच्चे मर गए, दूसरा भाग में उनका पति को सारे शरीर में घा भरा रोग हो गया। She knows that her husband was totally a man who was fearing God, but now God is not at all considering him. So just give up your faith and you go and die. और उसका आयुब का बीबी का कहने का मतलब ये है, तुम तो परमेश्वर को भय मानते हो, परमेश्वर को आराधना करने वाले व्यक्ति हो, लेकिन तुम्हारा शरीर में तुमको इतना सब कुछ हो रहा है, ये सबको तुम्हारा विश्वास को त्याग करके तुम जाके मर जाओ। It was a statement of frustration in her heart. और आयुब का बीबी का हृदय में जो दुख भरा हृदय से वो आके बोल रही है। But the same situation, in the same kind of situations, and in his body he was suffering all those things, he did not give up his faith. लेकिन आयुब का जो बीबी जैसा वो नहीं था। आयुब जितना भी दुख तकलीफ से गुजरा, वो कभी भी उन लोगों का विरोध में कुछ नहीं, परमेश्वर का विरोध में कुछ नहीं कहा। What I'm trying to say is, not only his friends was opposing him, his wife was also not supporting him. मैं कहने का मतलब ये है, आयुब का मित्रगण भी आयुब का विरोध में जैसा बात कर रहे थे, आयुब का बीबी भी आयुब का सपोर्ट में खड़ी नहीं हुई। So no one was able to understand the situation Job was facing. और आयुब किस प्रकार का परिस्थिति से गुजर रहा था, किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा था। See, Job's greatest pain was, even though he was having integrity, no one was supporting his life of integrity, because all these things happened just because of his sin or some kind of hidden sins. और आयुब का जो विश्वास योग्यता के बारे में कोई भी समझ में नहीं आ रहा था, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। इनको समझ में यही आ रहा था कि आयुब का जीवन में कुछ ना कुछ तो छुपी हुई पाप है और वो पाप छुपा कर रखा, इसीलिए सब कुछ हो रहा है बोल के उनका मित्रगण को ये विचार आया। There he started justifying his own integrity before his friends. और वहां पे वो अपना जो धार्मिकता अपना निष्कलंकता उनका मित्र का गण का सामने वो कहने लगा। See, character assassination is a big painful thing. और एक व्यक्ति का जो स्वभाव का ऊपर उसको मारना बा उनको जो नाश करने की जो कोशिश करना, वो सबसे बड़ा दर्दनाक दुख है। Physical pain is painful, but that pain is more than the physical pain. और शारीरिक दर्द तो है, वो तो दर्द ही है, लेकिन जो कोई व्यक्ति हमारा जो जीवन चरित्र का ऊपर वो दोष लगाता है, वो सबसे बड़ा दर्द है। So he wanted to prove his integrity before others. और उसी में आयुब अपना जो चरित्र का अपना जो जीवन का वो स्वयं वो कोशिश कर रहा है कि वो निष्कलंक के प्रभु के सामने। So in all the chapters, he was arguing with his friends that what you are saying is wrong.
because I have a heart of integrity before God. और वहां पे आयुब कहने का मतलब ये है कि आप लोग जैसा सोच रहे हो वो गलत है। मेरा जो 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 धार्मिकता व मेरा जो मन है परमेश्वर का दृष्टि में शुद्ध है। So that is why he is stating that I just want a mediator between myself and God, so that I can prove myself that I am pure. और आयुब कहने का मतलब है कि मेरे और परमेश्वर के बीच में एक मध्यस्थ व्यक्ति की आवश्यकता है, जो परमेश्वर के सामने मैं ये कह सकूं कि प्रभु मैं बिल्कुल आपका सामने निर्दोष हूं। Last week we have seen God did not bring a mediator between them. God himself came to deal with his problem. और आयुब का मित्रगण का बीच में स्वयं परमेश्वर आकर के एक मध्यस्थ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं जानता हूं आयुब को। See, God did not ask what happened, Job, how is your pain, how are you doing, this kind of questions he did not ask, but he brought some heavy creation wisdom and God's sovereignty kind of questions. He brought all those things. Job was speechless. और जब परमेश्वर का जो महानता, परमेश्वर का सर्वभौम के बारे में जब आयुब का बीच में लेके आया परमेश्वर ने, तो आयुब शब्दहीन बा, एक भी शब्द नहीं कह पाया। Now comes the climax. यह आता है जो इस सारे कहानी का जो शीर्षता। Shall we read chapter 42 from verse 1 to 17? Just to pay full attention to these verses, it will give us so much excitement in our heart. अगर आप 42 अध्याय 1 पद से लेके 17 पद तक पढ़ेंगे, हमारा मन में एक बहुत बड़ा उत्साह भर देगा। कोई भी भाई अगर हिंदी में पढ़ सकते हो तो और एक अच्छा होगा। 1 पद से लेके 17 पद। 41 का 42 अध्याय 1 पद से लेके 17 पद। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। तूने पूछा, तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्तियों पर पर्दा डालता है? परंतु मैंने तो जो नहीं समझा था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थी, जिनको मैं जानता भी नहीं था, तूने कहा, मैं निवेदन करता हूँ, सुन, मैं कुछ कहूंगा, मैं तुझसे प्रसन्न करता हूँ, तू मुझे बता। मैंने कान से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही है, वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छाटकर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ, तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूर्खता के योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय में मेरे दास अय्यूब की सी ठीक बात नहीं कही। यह सुनकर तेमानी एलीपज, सूही, बिल्दद और नामाती सोपोर ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण की। तब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना
यहोवा ने उसे दे दिया, तब उसके सब भाई और सब बहनें और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे, उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया। और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी, उस सब के विषय उन्होंने विलाप किया और उसे शांति दी, और उसे एक एक सिक्का और सोने की एक एक बाली दी। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी, और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 10,000 गधियां हो गई। इसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। इनमें से उसने जेठी बेटी का नाम यामीम यामीमा, और दूसरी का कसिया, और तीसरी का करेना पूक रखा। उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं नहीं थी जो अय्यूब की बेटियों के समान सुंदर हो, और उसके पिता ने उनको उनके भाइयों के संग ही संपत्ति दी। इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। अंत में अय्यूब वृद्धावस्था में दीर्घ आयु होकर मर गया। Thank you, brother, for reading that passage. We have seen such a great climax in his life. और हम लोग यहाँ पे देखते हैं अय्यूब का जब वृद्धि किस प्रकार से हुआ, हम लोग देखते हैं। Actually, when God was dealing with Job in the final chapter, all his friends could understand about his integrity before God. और जब परमेश्वर ने अय्यूब का साथ जो व्यवहार कर रहे थे, उनका दोस्त लोग को मालूम हुआ कि परमेश्वर उनका जो विश्वस्तता के बारे में किस प्रकार से कह रहे हैं। Previously, they thought it was because of his hidden sin all these things happened in his life. और पहले वो लोग सोचा था कि अय्यूब का जीवन का जो गुप्त पाप के द्वारा ये सारे विपत्ति अय्यूब को आया। But just before all this restoration happened in his life, one thing happened in the life of Job. और अय्यूब का जीवन में जब ये सारे चीजें जो परमेश्वर ने उसको वापस कर दिया, एक चीज उसका जीवन में घटना घटी। In verse 6 of chapter 42, it says like this: Therefore I retract, I repent in dust and ashes. और 6 पद में हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूं। See, Job was thinking that he was righteous, but when he saw the real holiness of God, he could understand that before God's holiness, all his righteous character is nothing. और अय्यूब वो अपने आप को बहुत धार्मिक समझ रहा था, लेकिन परमेश्वर का धार्मिकता और पवित्रता का सामने अय्यूब का धार्मिकता परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। In verse 3, he says, I said all these things without understanding. और अय्यूब जो 3 पद में बोलता है कि मैं जो कुछ भी बातें कहा ये बिना समझ के था। See, when he heard from God, he understood that I am nothing before this great and holy and awesome God. और जब परमेश्वर ने कहा बोल के जब सुना, तो उन्होंने कहने लगा कि इतना महान परमेश्वर के सामने मैं तो कुछ भी नहीं। And he is saying that I am hating myself. When I see the greatness of God, I am hating myself. So I am repenting in dust and ashes. और बाद में वहां पे कहता है कि इतना महान परमेश्वर के सामने मैं अपने आप को घृणा करता हूं और मैं पश्चाताप करता हूं। See, when we are broken-hearted before God, go. That is the basic thing. God is going to accept us. और जब हम आप और मैं संपूर्ण रीति से पश्चाताप करते हैं और मन फिराते हैं, उस समय प्रभु हमको स्वीकार करते हैं।
In Psalm 51, we see the repentance of David after his sin. अगर आप और मैं अगर 51 भजन में अगर आते हैं तो दाऊद का जो पाप का पश्चाताप वहां पे देखते हैं. And in verse 17 of Psalm 51, we see a broken and contrite heart, O God, you will not despise. 17 पद में पढ़ते हैं भजन संहिता 51 का 17 पद में, टूटा मन परमेश्वर का योग्य बलिदान है, हे परमेश्वर तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता. If anyone is broken before God, if anyone is having a broken heart before God, God is willing to come down to him or her to restore him. और कोई भी अगर टूटा मन के साथ प्रभु के पास आते हैं, परमेश्वर उसको रेस्टोरेशन करेंगे, उसको अपना स्थान में रखेंगे, वो कभी भी तुच्छ नहीं समझेंगे. Brothers and sisters, we all need to understand this secret that if you want a close relationship with God, God is pleasing only if you are broken-hearted. और आप और मैं प्रिय भाई और बहनों, अगर टूटा मन हो करके प्रभु के पास आते हैं, प्रभु टूटे मन को ही प्रभु स्वीकार करता है. That doesn't mean you always cry and cry and cry. It means you should not have a heart of pride in you. और उसका मतलब ये नहीं है कि आप जब कभी प्रभु के पास आते हैं हर समय रोना रोना, ये नहीं है. प्रभु के पास जब आते हैं टूटे मन के साथ आना चाहिए. Another verse we see in Isaiah chapter 57 and verse 15. अगर दूसरा पद पढ़ते हैं ऐसा नबी उसका 57 57 और उसका 15 पद, 57 का 15 पद, ऐसे या 57 का 15 पद, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वो यह कहता है, मैं ऊपर पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं और उसके संग भी रहता हूं, जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोग के हृदय और खेदित लोगों का मन को हर्षित करो. See, when we are coming in the presence of God, we will understand that God, I am nothing. I cannot say that I have something, but I am totally nothing when I come before you. जब आप और मैं परमेश्वर का सानिध्य में आते हैं, आप और मैं यही मन से आना है, प्रभु मैं आपका सामने कुछ भी नहीं हूं. In 2 Chronicles chapter 16 verse 9, we read like this. दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय 9 पद में हम लोग ऐसा पढ़ते हैं. दूसरा इतिहास 16 अध्याय 9 पद. You can read that in Hindi. 16 अध्याय 9 पद में हम लोग ऐसा पढ़ते हैं कि देख यहोवा का दृष्टि सारे पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि उनका मन उसके और निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ दिखाए. तूने ये काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा. Here, King Asa was not trusting in God, and he was trusting in his own power. But God is telling that if you were having a brokenheartedness and if you are concentrating your hearts upon me, it was my desire to show my strength to those who are having a heart of humility and trust. और आशा को परमेश्वर ने इस प्रकार से कहते हैं, अगर तुम वास्तव में मेरा सामर्थ को देखना है, नम्रता होना बहुत आवश्यकता है. See, when Job accepted his nothingness before God, suddenly the total story is changing. जब आयुब अपने आप को मान लिया, सारे कहानी का
बिल्कुल रीति से उसका कहानी बिल्कुल बदल ही गया। Suddenly, God is telling that He is calling the Eliphaz of Temanite and telling that I am angry with you and your two friends. और परमेश्वर तिमना एलिफाज को कह रहे हैं कि तुम्हारा बाकी तीनों मित्र के ऊपर मैं बहुत गुस्सा हूं। You know, the reason is only Job has spoken truth about me. और केवल परमेश्वर के बारे में केवल आयुब ही कहा बोल के परमेश्वर कह रहे हैं। But when we go through the chapters, we see they were not accusing God, they were accusing Job, and they were telling that God is great. और ये सारे जो आयुब का मित्रगण हैं, चार मित्र परमेश्वर का बारे में वो एक भी दोष नहीं लगा रहे, वो तो दोष लगा रहे आयुब के ऊपर, परमेश्वर महान है बोल के तो वो लोग कह रहे हैं। But God is telling that you did not said what is right about me. और परमेश्वर जो तिमना एलिफाज को कह रहे हैं कि तुमने जो सही बातें हैं वो तुमने नहीं कही मेरे बारे में। Actually, why did God say like that? क्यों परमेश्वर ने इस प्रकार कहा? In all those chapters, they said everything good about God. और अगर हम लोग देखते हैं इनका आयुब का मित्रगण जो कुछ भी कहा परमेश्वर के बारे में बहुत अच्छा कहा। But God is telling that you did not say good about me. लेकिन परमेश्वर खुद कह रहे हैं कि तुम लोग मेरे बारे में बिल्कुल अच्छा नहीं कहा बोल रहे। What may be the reason for that? और उसका कारण क्या हो सकता है मित्रों? We don't know the real reason, but we can assume certain reasons. और वास्तव में वो क्या घटना है, वो क्यों परमेश्वर इस प्रकार कहते हैं हमको मालूम है, लेकिन कुछ बातें हम लोग कल्पना कर सकते हैं। One reason we can assume that their assumption about Job's problem was wrong. और एक विचार हम लोग कर सकते हैं कि आयुब का मित्रगण का जो विचार आयुब का प्रति गलत था। And they were not speaking from their heart about God. और एक बात और हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये जो आयुब का मित्रगण का जो हृदय से परमेश्वर का बारे में वो नहीं आ रहा था। They were speaking from their wisdom, they were speaking from their intellect. और इन लोगों का जो बुद्धि से उन लोगों का ज्ञान से लोग बात कर रहे हैं। But their knowledge was not connected in their heart, their relation with God. और उन लोगों का जो उनका जो ज्ञान है उनका हृदय के साथ जुड़ा नहीं हुआ है कि परमेश्वर का बारे में बताए। When God is speaking to Samuel about David, he says that man are looking the outward appearance, but God looks into the heart. परमेश्वर ने सामुएल को कहते हैं कि अब जब दाऊद के बारे में बोल रहे हैं कि जब लोग बाह्य रीति से देखते हैं लेकिन परमेश्वर हृदय को जांचता है बोल के परमेश्वर सामुएल को कहा। So these friends, heart and mouth were not connected. They were speaking the intellectual things, but they were not, that facts were not connected in their heart about God. और ये लोग आयुब का मित्रगण का जो विचार सब कुछ उनका जो विवेक है, उनका जो मन बा, उनका जो ज्ञान के द्वारा लोग बात कर रहे थे, लेकिन उनका हृदय से परमेश्वर का ओर से ये लोग नहीं बात कर रहे थे। When God is mentioning the name of Job, every time repeatedly he is bringing this statement that my servant Job, my servant Job, my servant Job. जब कभी परमेश्वर आयुब का बारे में कहते हैं मेरा दास आयुब बोल के कहते हैं। See, when God is orchestrating all these trials in his life, God is keenly looking into his life that how much he is trusting me, even though he was broken in all areas of his life. परमेश्वर आयुब के बारे में इतना ही कह रहे हैं कि वो इतना सारे बातें से वो टूट गया है आयुब, पर भी आयुब मेरा ऊपर भरोसा करना,
मेरा पर विश्वास करना वो कभी भी नहीं छोड़ा है। God was not enjoying when his servant was suffering. ओ परमेश्वर का दास जब दुख और तकलीफ से गुजर रहा था, परमेश्वर कभी भी वो प्रसन्न नहीं थे। He was so keenly looking unto him that even though all these trials were permitted in him, he is still clinging on me. ओ उसका जीवन में जो दुख और तकलीफ के लिए मैंने अनुमति दे तो दिया, पर भी आयु मेरे ऊपर भरोसा करना कभी भी नहीं छोड़ा। I think from chapter 1 and 42 has a great span of distance when we think about the time in between. और अगर हम लोग एक से लेकर आगे जो पढ़ते हैं तो उसका जो टाइम का जो भिन्नता को हम लोग देख सकते हैं। Means the first trial happened and this restoration has a long span, maybe some years of distance in between. एक अध्याय से लेकर के जब हम लोग 42 अध्याय में आते हैं, मैं समझता हूं कि ये कुछ सालों का घटना घटी होगी आयुब का जीवन में। That doesn't mean all his friends were there for years, but when we see the painful death and this discussion, and he is telling about in chapter 30, he is telling about what happened in his social status, and everyone is despising him. This kind of things, maybe a few months or a lot of days happen in between. अगर हम लोग 30 अध्याय में जब आते हैं, वहां पे उसका जो घटना का विवरण हम लोग देखते हैं, ये एक अध्याय से लेके 41 अध्याय 40 अध्याय तक आते हैं। ये कुछ महीना हो सकता है, कुछ सालों का घटना है कि ये लोग ये जो आयुब किस प्रकार से दुख तकलीफ से गुजर रहा है। May not be a lot of years because this whole statement are coming in between himself and his friends, so maybe days or months. और ये जो घटना जो भी घटा है, कुछ दिन नहीं तो कुछ ज्यादा साल तो नहीं हो सकता है, कुछ महीनों ही हो सकता है। But now when the restoration happened, you know, in verse 11 we see his brothers, his sisters, and all those who are known to him are coming to him and comforting him. 11 पद में जब 42 अध्याय 11 पद में जब आते हैं, तब उसके सब भाई, सब बहनें और इसका पहले सबको जान पहचान थे, उन सभी ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया, और जितने विपत्ति यहोवा ने उसके ऊपर डाली थी, उस सब का सब विषय में उन्होंने विलाप किया और उसको शांति दी। Previously, when all these things happened, we don't see any brother or sister or friend except these 3-4 friends. Nobody is there to comfort him. जब ये घटना घटी, उसका भाई बहन कोई भी आकर के उनको तसल्ली नहीं दिया, लेकिन उनका दोस्त लोग जरूर आया, लेकिन उनका विपरीत आकर के बात ही नहीं। But God proved this man's integrity before the whole community. और परमेश्वर स्थापित किया आयुब का जीवन के द्वारा, सारे उनका समाज का सामने स्थापित किया कि परमेश्वर का जो विश्वास योग्यता। And God is instructing his friends to bring sacrifices before God and before in front of Job for the restoration of their sin. और परमेश्वर उनका आयुब का मित्रगण को ये कह रहे हैं कि तुम लोगों ने पाप किया, तुम्हारा पाप के लिए तुम लोग बलि लेके आओ, आयुब का सामने लेके आओ। And what your wisdom, you are thinking that you are wise, and in verse 8 in the middle we see you were fools, your foolishness you were speaking there. और 8 पद में जब आते हैं तो वो कह रहे हैं, परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम लोग मूढ़ है, तुम लोग मूर्ख लोग है, तुम लोग
बेकार बातें मेरा दास आयुब के बारे में बात कर रहे थे। Don't think that you are wise and you are bringing some great statements. That doesn't mean you are wise. You doesn't know what is wisdom. You know, wisdom is from above. और ये लोग सोच रहे थे कि ये लोग बहुत ज्ञानी हैं बोल के बहुत बड़े बड़े बातें तो कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि परमेश्वर जो सच्चा जो बुद्धि है स्वर्ग से आता है और सच्चा बुद्धि अच्छा होता है। And these three friends, they came before Job, and as God said, they did the sacrifice, and Job started praying for them. और हम लोग देखते हैं कि आयुब का जो मित्रगण बलिदान लेके आया और आयुब उन लोगों के लिए प्रार्थना की। See, these much days they were accusing him and they were hurting his heart, but still Job was able to pray for them. और हम लोग देखते हैं कि उसका मित्रगण आकर के इतना दिन तक आयुब को बहुत बातों से ताड़ना किया, लेकिन अभी आयुब उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। See, Job is showing his real godliness in this situation. और इस परिस्थिति में आयुब वास्तव में उनका जो परिपक्वता जो धार्मिकता को दिखा रहा है। And first, Job has a broken heart, and he presented his real heart before God. And secondly, he was praying for his enemies. The friends became enemies. और उनका जो दाऊद आयुब जो अपने वो लोग सोचा कि हमारा मित्र तो बहुत पापी है, लेकिन उनका जो शत्रुओं के लिए भी आयुब प्रार्थना कर रहा है। And in verse 10 we see Lord restored the fortunes of Job when he prayed for his friends, and the Lord increased all that Job had twofold. और आयुब का जो जितना था परमेश्वर ने उसका दो गुना कर दिया, और उसका जो कुछ भी है परमेश्वर उनको सब में आशीष दिया। If you are feeling that you are not connected with God in such a way, two things you can do. और आप अगर परमेश्वर के साथ अगर सचमुच में संबंध अच्छा नहीं होता आप सोच रहे हैं, तो दो बातें आप कर सकते हैं। One, come before God with a broken heart, and secondly, you should not have any enemies that you can pray about. और आप जब परमेश्वर का पास आते हैं एक काम कर सकते हैं, आप टूटे मन के साथ प्रभु का पास आ सकते हैं। दूसरी बात, आप किसी का विरुद्ध में होकर के आप प्रार्थना नहीं कर सकते। So that means even though somebody is are against you, don't consider them as enemies. You need to pray for them, and if your heart is pure and gentle, it is God's responsibility to keep up His words that He will come near to you and restore you. और मैं एक बात बताऊं, जब आप इस प्रकार से आते हैं परमेश्वर आपको अच्छा स्थान में रखेंगे और आपको स्थिर करेंगे। See, Job was going through the fiery furnace of trials, but now God restored everything double. और आयुब उसका जीवन के द्वारा जितना तकलीफ होना वो गया था, लेकिन परमेश्वर ने आशीष किया और दो गुना उनको दिया। And God is putting Job in a position that he is one of the greatest person of the Old Testament. In the book of Ezekiel and in the book of James, God is bringing the name of Job again and again. और परमेश्वर एजेकियल का पुस्तक में और जेम्स मतलब याकूब का पुस्तक में वो कह रहे हैं कि आयुब पुराना नियम में एक सबसे बड़ा धार्मिक एक व्यक्ति था। God valued his godliness. और परमेश्वर उसका जो दैविक जीवन जो जिया है उसको आदर किया। When he restored Job, every man who were against him could understand that he is actually the right and clean person. और जब परमेश्वर सब कुछ
दोबारा परमेश्वर ने दे दिया, सबने बोला कि वास्तव में वो धार्मिक व्यक्ति था बोलकर सबने मान लिया। Gradually, we see all the blessings were given double, all his wealth, or all his possessions, everything was double, and he has given again the same 7 sons and 3 daughters. और परमेश्वर ने सब कुछ डबल करने के बाद उनका जो बच्चे थे 7 लड़के और 3 लड़कियां परमेश्वर ने दे दिया। See, Job and his wife and his children were lived a happy life later too. और बाद में भी हम लोग देखते हैं कि आयुब उसका परिवार 7 बेटे 3 बेटियां और आयुब उनका अच्छा एक परिवार, एक आत्मिक परिवार होकर के जिया होता। After this event, he lived again 140 years and he has seen 4 generations. और हम लोग देखते हैं कि 4 पीढ़ियों को उन्होंने देखा। ये सारे बाद उसके बाद आयुब 140 वर्ष जीवित रहा। The content of this book, the conclusion of this book is, it is a victory of God, and God made Job to win in his life, and Satan became a loser. और ये पुस्तक का सारांश ये है कि आयुब एक विजय जीवन जिया और शैतान पराजय हो गया और परमेश्वर ने स्थापित किया कि विजय जीवन का व्यक्ति को। This whole story started with an argument with God and Satan. और ये सारे पुस्तक शुरू होता है परमेश्वर और शैतान के बीच में एक वार्तालाप, वाद विवाद। Satan said, yes, Job is a godly person, but it is conditional because all these blessings are given to him, so he is godly. और शैतान ये कहने का कोशिश कर रहा है ये सब कुछ परमेश्वर आप सब कुछ आयुब को देते हैं इसीलिए वो धार्मिक है बोल के इस प्रकार का वाद विवाद किया। God said, no, even otherwise he is godly. परमेश्वर ने ये कहा ऐसा नहीं है, और भी अगर कुछ भी नहीं रहने से भी वो धार्मिक ही है। Permit me to take away his things, he will speak against you right to your face. That is what Satan मुझे said. ऐसा अनुमति दे देना परमेश्वर कि मैं उसका पास जो कुछ भी मैं छीन लेता हूं उसके बाद आपका मुंह में ही वो श्राप आपको दे देगा। And finally, in this chapter we see nothing happened. Satan defeated and God won in his argument. और हम लोग देखते हैं कि ये सारे बातों में शैतान पराजय हो गया और आयुब विजय हो गया, और उसका बाद में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर उनको साथ दिया। And in the heavenly council, in the beginning and in the end, Job was a hero. और शुरुआत और आखिरी में हम लोग देखते हैं कि आयुब वास्तव में एक अच्छा एक व्यक्ति था। Dear brothers and sisters, you are specially noted by God in his heavenly council. और प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का दृष्टि में, स्वर्गीय दृष्टि में आप लोग को और मुझे परमेश्वर में ध्यान देते हैं। But can God say about you that whatever happens to him or her, he will stand for me? और जो कुछ भी उसका जीवन में घटना घटता है, फलाना व्यक्ति मेरे लिए वो खड़ा होगा बोल के, क्या ये बात आपका बारे में परमेश्वर कहेंगे? May these thoughts help you to think about it, and may God bless you all. परमेश्वर इस बारे में बहुत हमको सहायता करे, चिंता करने के लिए प्रभु सहायता करे। इस वचन के द्वारा प्रभु